सर आप क्वेश्चंस लिखवा दो ना, पहले लिखवा देते जैसे। अलजिया क्वेश्चंस लिखवा दो। क्वेश्चंस पहले आप क्वेश्चंस लिखवा दो, ऐसे क्वेश्चंस लिखवा दो सर, लोगों को समझ नहीं आता। एक मिनट बता दिया। अभी क्या है, हम एक्सप्लेन करके आपको छोड़ देंगे, और जो भी हम बता रहे हैं आपको, तो जो भी हम क्वेश्चन आंसर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम योरसेल्फ, ठीक है ना। वी आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यस्टरडे वी आर ऑलरेडी डिस्कस whatever question and answer given on page number 33, तो आपने कर लिए होंगे। जो 33 पे मैंने क्वेश्चन बताए थे 1 2 3 4 5 6, there are some questions are given, और sometimes we are discussing verbally, जैसे adult franchise है, अगर हम पूछे what do you mean by adult franchise, तो you have to capable to answer it. Adult franchise means when all adults are allowed to cast a vote at the time of elections, so that means adult franchise. So you can take help from your book. These all आप कह सकते हैं जो sentences of these all answers are given in your book only. So you have to find out, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी मैं जो बताना जा रहा हूँ धीरे धीरे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे how many जो members हैं they are elected for Lok Sabha, not elected, nominated by the President of India. If this question will come, so what is the answer for this? First of all, you raise your hand and then you can answer. How many members are nominated by the President of India for Lok Sabha? Yesterday it was 2 members. Tell. 2 members. 2 members. This much answer is there. How many members are nominated by the President of India for Rajya Sabha? Sir, 12 members. 2 members. Yes. All questions are very clear to you, and these all questions का जो answer है, these all materials given in your book only, but you have to find out where it is given, ठीक है ना। First of all, you try to do yourself. If there is a doubt, so you can clarify your doubts, ठीक है ना। Is it clear to all of you? जैसे for example एक question हम देते हैं, what is the role of a parliament? तो पार्लियामेंट का रोल क्या है, ये yesterday we have discussed. जैसे फॉर एग्जांपल वन बाय वन, अभी बोलने के बीच में मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट से एनीथिंग, जब मैं बताना बंद कर दूं तब आपको बोलना है। जैसे हमने कल बताया था, लोकसभा इज टोटली रेस्पॉन्सिबल टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने का काम क्या करती है, पार्लियामेंट करती है। दे आर सेलेक्टिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। जब उसके बाद सेकंड हमने डिस्कस किया था, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये दूसरा काम करती है सेकंड वर्ड, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। Now these all points are given in your page number 36 and 37. You have to find out their answer for that heading, ठीक है ना। Then another जो हमने बताया था C, यानी कि third one, they are the lawmakers. So it was discussed very in a broad way. So you have to capable to give the answer of all these questions. अगर मान लिया it will come in your exam, तो automatically you are very much aware about the answer of these questions, ठीक है ना। Because all these answers are given directly without any modification, but you have to find out where they are given. So by this way you are going to read out your chapter again and again to find out the solutions of particular questions, ठीक है ना। रेडीमेड क्वेश्चन दे देना, वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। जितना सोचेंगे हम भी दे दिया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। से यस और नो, इज इट? Yes sir. Okay. Now today we are going to discuss who are the people in parliament. अब पार्लियामेंट में कौन आदमी रहते हैं, उसमें कौन, व्हाट इज द ग्रुप, व्हिच ग्रुप इज एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट? कैन यू से समथिंग अबाउट हु इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? आप बता सकते हैं कुछ उसमें पार्लियामेंट के मेंबर कौन है मेनली, ब्रॉडली? मैं बता दे रहा हूँ,
In our parliament, there are 2 houses. 2 houses. There are 2 houses. Can you name the houses? Anybody? Raise your hand. First of all, raise your hand. Yes. Karishma, want to say something? Yes, tell. How many houses are there in parliament? Tell me answer. Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha and Raj Sabha. Very good. Lok Sabha and Rajya Sabha. These are the 2 houses. ठीक है ना? और क्या है इसमें, क्या है जो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी सुनो ध्यान से जरा। लोकसभा मेंबर्स, जो लोकसभा मेंबर्स हैं, तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. दे आर directly elected by the people. The member of Lok Sabha are directly elected by the people. अब directly elected by the people क्या मतलब है? The entire area or entire country is divided into number of constituency. Number of constituency में divide था वो, ठीक है ना? और number of जैसे मैं मान लिया, suppose ये एक area है, एक country है, suppose country है, ऐसा मैंने एक example दे दिया. Suppose 4 constituencies are there. 1, 2, 3, 4. ठीक है ना? There are the 4 areas. And from one area we are elect 1 MP. MP यहाँ से 1 MP यहाँ से जाएगा 1 MP. Another MP यहाँ से, second MP यहाँ पर जाएगा MP. और third MP कहाँ से जाएगा? Third MP हो सकता है यहाँ से elect हो जाए, और fourth MP मान लिया 4th MP यहाँ से elect हो जाए. तो these areas are considered as constituency. ये मैंने कल भी बताया था आपको, आज मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ जिससे आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो all members are elected by the people from different places or from different area. तो whatever area is belong to the particular constituency, जैसे ये area है, मैं अभी इसको कर रहा हूँ, ये वाला जो मैं हाथ चला रहा हूँ यहाँ पर, तो this area is belong to one constituency. One constituency का मतलब है यानी कि 1 MP is elected from that particular area, and that particular area is considered as constituency. ठीक है ना? When MP is elected, तो MP के लिए constituency हो जाएगा. When particular MLA is elected from that particular area, तो it may be considered as state assembly. ठीक है ना? और state constituency. ठीक है ना? अभी constituency का मीनिंग क्लियर हो रहा है तुम्हें? It is given in your book also. You have to find out where it is given. मैंने जो आपको बताया वो क्लियर है? Is it clear to all of you? Yes sir. Okay, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. उसके बाद जैसे the parliament now has more and more people from the different background. यानी कि जो parliament के जो 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो हमारे जो 2 हाउसेस हैं, ये 2 हाउसेस यानी कि पहला है लोकसभा, जैसा अभी डॉक्टर ने बताया था, और दूसरा है हमारा क्या, राज्यसभा. ये सेकंड हम देख रहे हैं, राज्यसभा. राज्यसभा, ठीक है ना? तो ये क्या है, 2 हाउसेस हैं ये, राज्यसभा और लोकसभा में और राज्यसभा में. तो देयर वैरायटी ऑफ पीपल्स आर अवेलेबल. या वैरायटी ऑफ पीपल का मतलब है सम आर बिलोंग टू द फार्मिंग कम्युनिटी, some are belong to the villages, some are belong to the urban area, some are belong to the poor community, some are belong to the general caste, some are belong to the OBCs, and some are belong to the SC and STs, and of course some are belong to the female community. तो ये क्या है? These are the some divisions. What type of divisions we are having in our Lok Sabha and whatever divisions we are having in Rajya Sabha. So there are so many people are belongs to the Lok Sabha as well as Rajya Sabha. ये वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं. राज्य सभा के मेंबर की क्या है? MP और राज्य सभा, they are also known as the name of MP. और ये भी क्या कहलाते हैं? ये भी मेंबर ऑफ लोक सभा के क्या कहलाते हैं? MP कहलाते हैं. तो both are MP. One group is considered as Lok Sabha, member of parliament in Lok Sabha, and another group is known as member of parliament in Rajya Sabha. ये तो 2 कैटेगरी में broadly, but out of these 2 houses, various peoples are belong to the various peoples are आप कह सकते belong to different background, different caste, different area, and there are belong to the different communities,
and they are different, belong to the different state, ठीक है ना, and they are having the different background, economical background में भी there, social background में भी there, ठीक है ना, वो सब तरह के लोग उसमें, यानी गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, उसमें गांव को बिलोंग करने वाले भी हैं, सिटी को बिलोंग करने वाले भी हैं, उसमें as per their caste they also belong to the different communities, they got different caste, ठीक है ना, ठीक है ना, तो they are all the part of our parliament, they all together consider as, और they are part of our parliament. Parliament के दो हाउसेस हैं, मैंने आपको बताया, two houses are there, Lok Sabha and Rajya Sabha, and those who are member of Lok Sabha and those who are elected for the Lok Sabha, so they at the same time they are also belong to the different community, different social background, different economical background, they are speaking different language, ठीक है ना, and they are belong to the different state. तो ये जो जितने भी डिवीजन मैंने बताए, कास्ट में भी देयर, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में भी देयर, उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड में भी देयर, ठीक है ना, लिटरेसी रेट में भी देयर। तो ये क्या है, जो ये द पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज, जिनके रीजनल पार्टीज आर बिलोंग टू समाजवादी पार्टी देयर, बीजेपी देयर, बीजेपी, तो बीजेपी इज देयर, ठीक है ना, तो दे बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो उनका बैकग्राउंड यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बेस हो सकता है, रूरल अर्बन के बेस, रूरल और अर्बन के बेस हो सकता है, और दे आर आल्सो बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटी एंड कास्ट, ठीक है ना, तो ये क्या है, यानी कि दीस ऑल पीपल्स आर बिलोंग टू द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, एंड दे आर पार्ट ऑफ parliament, very good, they are part of our parliament, ठीक है ना, तो पार्लियामेंट के अब देखो हेडिंग दिया है ना, who are the people in parliament, यही तो, अगर मान लिया सपोज यही क्वेश्चन आ जाए, whatever topic is given, सब topic is given in your book, who are the people in parliament, तो सीधी बात है MPs हैं उसके, यानी कि and they are having divided in two houses, राज्यसभा and Lok Sabha, and they are belong to the different religion and different backgrounds and different आप कहते हैं कास्ट और different एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको, दिस आंसर इज डायरेक्टली गिवन इन योर बुक ओनली, जो मैं अभी रीड कर रहा था, कहां से, द पार्लियामेंट नाउ हैज द मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, पहली बात तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड में सारा एक आंसर आ गया, क्या डिफरेंट बैकग्राउंड का मतलब है, सम आर इकोनॉमिकली वीक, सम आर इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग, सम आर बिलोंग टू द रूरल पीपल, रूरल एरिया से आते हैं, सम आर बिलोंग टू द अर्बन एरिया, ये इसकी बैकग्राउंड होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड दे आर बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन, ठीक है ना, दे आर बिलोंग टू द जेंडर डिवीजन इज आल्सो देयर, सम आर मेल, सम आर फीमेल, मेल्स आर मोर देन फीमेल, ऐसा, यानी कि ये जो सब मैं बता रहा हूँ ये सब आप देख सकते हैं उसमें सारा का सारा, ठीक है ना, इट मे बी डिफरेंट आइडियोलॉजी फ्रॉम जिया और इट इज different answer for Algia, or it may be different answer for Chinmay, तो you can differently explain, ठीक है ना, आप अपने तरीके से अपने आप अपने आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, सही है ना, Yes, sir. हाँ यस सर, हाँ, तो उसके बाद हम बता रहे हैं कि वो आपको ग्रुप एंड द पीपल that were till now unprecedented in the beginning of the date elected by the parliament, यानी कि जो मैंने बताया था कि जो यानी कि बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है, they are not having sufficient representation in the लोक सभा और राज्यसभा, वो अपनी कैटेगरी और अपने ग्रुप का वो प्रेजेंटेशन नहीं रहता है उनका, तो वो क्या है, there has also been increase in the political participation from the Dalit and background caste, यानी कि those who are economically weak and those who are socially backward, then उसके बाद है and the minority का मतलब है those who are in less number like Christians, like Muslims, like Sikh, these are the minority community, minority और majority का concept दोबारा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, it is clear to all of you I think so, या मैंने क्लास का भी एग्जांपल दिया था आपको,
तो आपको क्लियर हो गया होगा। मेजॉरिटी मींस दे आर इन लार्ज नंबर, दे आर इन लार्ज नंबर, so that community is considered as a majority community, those who are in large number, and those who are in less number comparatively, I am talking about comparatively, and they are considered as a minority. ठीक है ना? जैसे इंडिया में 2 डिवीजन है broadly, we are dividing Indian society into broad category as per their religious practice. Hindus are in majority because more than 80% people are belong to the Hindu community, near about 80%, near about, it is not exact data, but you can say roughly near about 80% of people belong to the Hindu community in India, and जो 20% है, remaining 20% है, तो out of these Muslims are there, Christians are there, and other small category of peoples are there. So those who are come under this category इसमें 20 में तो मुस्लिम्स भी हैं उसमें 15-16% के आसपास, ठीक है ना? तो दे आर इन माइनॉरिटी, ठीक है ना? दीज कम्युनिटीज, दोज कम्युनिटीज आर लेस इन नंबर इन आवर पॉपुलेशन, तो दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटी। तो ये बताने की बार-बार जरूरत नहीं है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का आपको पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी, पता है ना सबको? यस सर। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कंसेप्ट आपको कई बार मैंने बता दिया और फिर मैंने दोबारा समराइज कर दिया इसलिए आपको। तो इसके बाद है some are belong to the Dalit community, some are backward community. Of course, let us look the following table. जो table है दी है, table is given in your page number 39. I am not going to draw this table on board. You have to refer your book. बुक में रेफर करेंगे वो जल्दी हो जाएगा, आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा वहां से। Everybody is having book, I think so, क्योंकि आपको बुक लेके बैठना ही है और बैठे होंगे सब। Everybody is having book. Say yes or no? Yes sir. Okay, please refer your book and open your page number 39. One table is given. एक टेबल दी है वहां पर, मैं देखता हूँ उस पे अगर किसी के 2-4 बच्चों के पास नहीं होती है तो मैं उनके लिए थोड़ा ट्राई और समझकर जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है ना बेटा? हाँ, इसमें क्या है? वन टेबल इज गिवन, फर्स्ट हेडिंग इज गिवन लोकसभा, लाइकवाइज ऐसा दिया है, फिर दिया है इलेक्शन ईयर, इलेक्शन ईयर इज गिवन, देन उसके बाद वोटर टर्नआउट, हाँ वोटर टर्नआउट इन परसेंटेज दिया है, परसेंटेज, ठीक है ना? तो मैं जल्दी से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद दो वर्ड फॉर हैविंग अ बुक विद देम, तो ये फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, देन फर्स्ट, फोर्थ इज रिटन इन सेकंड, फोर्थ इज रिटन, देन फिफ्थ इज देयर, देन सिक्स्थ इज देयर, उसके बाद 8 and then 9 and so on, 10 and so on, ठीक है ना? 10 नीचे तक आप जाएंगे तो आप रेफर कर लेंगे। ना उसके बाद क्या है? 1950-51, year also given 1951 to 1952। हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरे पास बुक है from 10। अच्छा तो मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ आपको, I'm going to explain each and everything for you. Please wait. 1971, उसके बाद 1977, then 1984, and then 1999, 1991। एक छूट गया, कोई बात नहीं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। एक कॉलम छूट गया, कोई बात नहीं। then turnout 44.87, उसके बाद है 61.04, 61.04 is given, हाँ 10, 55.27, उसके बाद 60, wait, 49, then 63, then 63.56 is there, then उसके बाद 56.73,
56.73. It is given in percentage. और ये परसेंटेज में दिया है, they are all given in percentage. अब ये एक अब आपको क्या होगा, लोकसभा इलेक्शन के लिए फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, फोर्थ लोकसभा इलेक्शन, फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन, सिक्स्थ लोकसभा इलेक्शन, एट्थ लोकसभा इलेक्शन, 10th लोकसभा इलेक्शन. ये इलेक्शंस की क्या है, ये क्या दिया है, फर्स्ट लोकसभा, थर्ड लोकसभा, ये कैसा दिया है, उसके बाद ये इलेक्शन के लिए दिए हैं. It is like these column, these two columns are very much clear without any explanation. ये दो कॉलम आपको क्लियर रहना पूरी तरह बिना मेरे एक्सप्लेन करे. ये ईयर की इलेक्शन की और ये इलेक्शन है, ठीक है ना. और ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, व्हाट इज टर्न आउट, ये क्या है, ये जो वर्ड लिखा है व्हाट इज टर्न आउट. टर्न आउट समझ पा रहे हैं आप, एनीबॉडी? सर हाँ, यस, वन बाय वन, रेज योर हैंड फर्स्ट. हाँ, खुशहाली, यस, टेल, यू वांट टू से समथिंग. सर आपने जो ये टेबल बनाई है उसमें वोटर टर्नआउट में सर परसेंटेज ये नहीं है सर, मेरी बुक में दूसरे हैं. कोई बात नहीं, concept is same, concept is same. If it is different in different books, but concept is same. concept को समझो, don't follow your data. ठीक है बेटा? ओके सर. हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. वोटर टर्नआउट में भी डिफरेंस, ठीक है ना, ये डिफर कर सकता है, इट में भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स. ठीक है बेटा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नआउट, वोटर टर्नआउट. तो वोटर टर्नआउट का मतलब है हाउ मच वोटर्स आर कास्टिंग देयर वोट, हाउ मच वोटर्स आर registered their vote at the time of elections. How much का मतलब क्या है, जैसे 44 है, फॉर एग्जांपल, इन माय एग्जांपल, ये मेरा एग्जांपल मान लो, सपोज, डोंट रेफर योर बुक, नाउ कम टू दिस पॉइंट, सपोज 44% is there, suppose 44%, ठीक है ना. तो that means that shows out of 100 people 44 people are putting their vote at that time of elections. That is the meaning of this turnout. ठीक है ना. सपोज 100 people आते हैं. सुनो पहले, एक मिनट सुनो मेरी, पहले एक बात सुन लो. पहले दो एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको. लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, यू एक मिनट सुनो पहले मेरे बच्चे. जैसे 44 माने तो रफली हमने 44 कर लिया. मैं अभी इसको एक्जेक्टली वो लिख दे रहा हूं, तो आपकी बुक में दिया है, आपकी तरफ से बता रहा हूं. आई एम गोइंग टू प्रिंट आउट माय ओन एग्जांपल. सपोज 44% इज देयर. ये 44 दिखाई दे रहा है आपको, 44%. हाँ, तो 44% का मतलब यहाँ पर है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 पीपल, 100 में से कितनों ने वोट किया है, हाउ मच वोटर टर्नआउट इज देयर इन फर्स्ट कॉलम, इन दिस पर्टिकुलर कॉलम. ये कितना, हाउ मच वोटर्स आर देयर, टर्नआउट, वोटिंग टर्नआउट कितना हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड. हाँ, Karishma is there. Yes, you want to say something? बोलो करिश्मा. अरे तुमने हाथ खड़ा किया था ना अभी. हाँ. हाँ. Tell Tejas is there. You want to say something? अरे बोलना चाह रहा है तेजस. Say yes or no? Open your speaker now. It is working. No sir. हाँ, कोई डाउट नहीं है. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 44% दिया है, ये वोटर टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं वो बता रहा हूँ आपको. एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, तो यू कैन क्लैरिफाई ऑल द डाटा, व्हाटएवर डाटा आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर टेबल. जैसे मान लीजिए 44 टर्नआउट इज देयर, तो 44% का मतलब यहाँ पर है आउट ऑफ 100 पीपल 44 आर यूजिंग देयर वोट, they are putting their vote at the time of elections. ठीक है ना. यानी कि 1950, 51 में, 52 में, जिसमें ये डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, ये हो सकता है ये भी अलग अलग हो, लेकिन ये 50, 51 माने 51, 52 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 44 टर्नआउट लिखा है हमने, सपोज एग्जांपल में, एज पर दिस एग्जांपल. तो इसका मतलब ये है आउट ऑफ 100 पीपल, यानी कि सपोज 100 people are belong to that particular
आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आउट ऑफ 100% में से 44% पीपल आर पुटिंग देयर वोट फॉर देयर कैंडिडेट्स एज ए होल टोटल, ठीक है ना। तो टर्न आउट का मतलब है आउट ऑफ 100 हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल पुटिंग देयर वोट इन जनरल इलेक्शंस और इन एमपी इलेक्शंस। तो ये कितना है, यानी कि 100% मान लिया हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स को, तो उसमें से कितने लोगों ने वोट किया, केवल 44% आर पुटिंग देयर वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। फर्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें कितना किया है। अब देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है, इट इज इंक्रीज, ये क्या है, पहले क्रिकेट का 44 ओनली, अब क्या है मोर देन 60% पीपल स्टार्ट कास्टिंग देयर वोट और स्टार्ट और यूजिंग देयर वोटिंग राइट। कितना हो गया 61, अगर मान लें इसको रफली 61% मान लें हम, होल नंबर में इसको मान लें 61% हम कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर 44 था और यहाँ पर कितना हो गया 61% हो गया, ठीक है ना। तो कितना परसेंटेज है, यानी कि इंक्रीज हो गया, नियर अबाउट 80 to 19% इंक्रीज हाइक इज देयर, यानी कि प्रीवियसली 44% पुटिंग देयर वोट and second elections में जब क्या होगा 61% people are putting their vote at the time of लोकसभा इलेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, causes may be many, यानी कि जो टर्न आउट है, टर्न आउट समझ गए आप, how many percentage of people are putting their vote at the time of elections, तो that will be considered as a turnout, voter turnout। यानी कि जैसे मैंने बार-बार बता रहा हूं मैं, ये 100 वोटर हैं 44 ने वोट दी, या 100 वोटर हैं 61 ने वोट दी, या 100 वोटर है सपोज 100% वोटर है, 100% वोटर है, आउट ऑफ 100% 55 आर पुटिंग देयर वोट, आउट ऑफ 100% 60% आर पुटिंग देयर वोट। तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल आर पुटिंग देयर वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, दे आर, दैट इज नोन एज द वोटर टर्नआउट, ठीक है ना, दैट इज नोन एज वोटर टर्नआउट, ठीक है। जैसे आपके क्लास में 40 चिल्ड्रन आर देयर एंड दोज हु आर अटेंडिंग क्लास, तो इट इज अ टर्नआउट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। एक तरह से ये देखा जाए, हाउ मेनी प्रेजेंट आर देयर, आउट ऑफ 40 में तो 30 आर प्रेजेंट, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इट इज फॉर एग्जांपल ओनली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 40 मेंबर क्या हो गया 100% हो गया, एंड यू कैन कैलकुलेट how much percentage will come when 30 children are attending my class, ठीक है ना। suppose out of 40 everybody is attending my class, so that means 100% attendance is there। जैसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, out of 40 children are there, they enroll 40 children in a particular section, if you are attending all 40 children are attending class, तो ये क्या हो जाएगा 100% attendance होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको टर्नआउट का पता लग जाए। तो 100% अटेंडेंस का मतलब है, इसको ले जाओ वोटर्स में, आउट ऑफ 40 में एवरीबॉडी इज पुटिंग देयर वोट, तो इसका मतलब क्या होगा 100% टर्नआउट, वोटिंग टर्नआउट कहलाएगा वो। आउट ऑफ 40 यहां पर मान लिया, एंड एवरीबॉडी इज पुटिंग देयर वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। तो जैसे मैंने प्रेजेंट का बताया अभी 100% प्रेजेंट इज देयर, तो वैसे 100% इफ दे आर पुटिंग देयर वोट 100%, तो वहां पर टर्नआउट का क्या हो जाएगा 100% टर्नआउट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान ले आउट ऑफ 40 अगर 30 आर पुटिंग देयर वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, तो उसकी कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल लेंगे, एंड हाउ मेनी पीपल आर इन परसेंटेज दे आर पुटिंग देयर वोट इन ए लोकसभा इलेक्शन, तो इट विल बी कंसिडर्ड टर्नआउट, वोटर टर्नआउट, ठीक है ना। अभी क्लियर हो गया होगा ज्यादा आपको इस एग्जांपल से, ये क्लियर है तुम्हें मेरे बच्चों? Yes, sir. यस सर वैसे नहीं कहना है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ नहीं क्लियर हो जाना चाहिए, हमारा पर्पस वही है क्लियर करना। हाँ तो ये टेबल आपको, इट में भी डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, थोड़ा बहुत इधर उधर 1-8% का इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है वो क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया होगा आपको, ठीक है ना। हाँ अभी मैं